चलो देखो, फ्लैग्स के बारे में मैंने जो बोला उसका डेफिनेशन सीधा दिया हुआ है। नेक्स्ट flag is continue over here also. Next, bank RS0 and RS1 is 00, bank register is 0, address is 00207. Remember, PSW.3 and PSW.4, these two pin is RS0 and RS1 is very, very important. PS0, and I am described the function of POV, RS0, RS1, F0, AC, and CY yesterday. Am I right? हेलो, ये तो मैंने डिस्क्राइब किया ना इसका फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. Pin. Any observations on any wants to know something about you, any queries? I'm described this one yesterday. This one I am described. Function of CY, function of AC, function of F0, function of RS1, RS0, OV and P. All are described. Say, it's clear to you. Any queries if you have, you can ask me. किसी का कोई क्वेरीज है? हाँ, अरे हाँ ना, कुछ भी नहीं है क्या? अविनाश, Bubbly. Yes, sir. Any queries? If you have, you can tell me. Jai, Yes, sir. Sonam, कोई queries है सोनम? यस सर, बहुत सारा। तो बोलो क्या queries है? सर कल का क्लास छूट गया था। मैथ फ्लैग क्या होता है समझ नहीं। मैथ फ्लैग? यस सर। और बोलो। सर अभी तो बस वही थोड़ा न्यू लग रहा है, कल का क्लास छूट गया था ना तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और कोई क्वेरीज किसी का है? क्लास छूटने के बाद भी हम वीडियो तुरंत दे देते हैं, तुम लोग देख सकते थे। यस सर, बट नहीं देख पाए थे एक्चुअली, आज देख लेंगे। तो आज पढ़ने से क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। मैथ फ्लैग इधर लिखा हुआ है इसलिए वो बोल रहा है मैथ फ्लैग, एक्चुअली आगे पीछे कुछ देखे ही नहीं है। इधर में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्लैग वी, then you can see say this is CY. CY means carry flag. This is nothing but a carry flag. So this is a carry flag, right? What are the functions of carry flag? Carry flag is nothing but I am already described to you. That is, carry flag. Whenever you are addition or subtractions, then carry or borrow will be generated. At the time of additions, carry will be generated. At the time of subtraction, borrow may be generated. So that's why carry flag will be set after addition and additions flag, or
after subtractions, addition, subtraction, something like that. So any math operations is done, any math operations will be done, then carry flag will be set or reset. That's why this is a that's why this is a math, you know, math is written over here, math function. It's clear to all of you? सर 4 का मतलब Huh? 4 क्यों लिखा हुआ है? 4. One is a carry flag, one is a auxiliary carry flag, and another is overflow flag, and another is a parity flag. These 4 are math function flag. Means after any arithmetical logical operation, these 4 flag bit will be changed. Okay? कैरी फ्लैग का क्या फंक्शंस है तुम लोग पढ़े हो 85 में, जो पढ़े हो सेम. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो पढ़े हो सेम. पैरिटी फ्लैग जो पढ़े हो उसके रिवर्स. मतलब you are what are the functions of parity flag in 8085? सर इवन रहने से सेट और ऑड रहने से रीसेट. Reset. इधर ऑड रहने से सेट, इवन रहने से रिसेट. Just reverse. Remember these things. This is very, very important. A lot of students make mistakes, so that's why I'm telling you. Okay. And next, overflow flag is nothing but a you know, in a 7-bit operations, if say accumulator content, say accumulator content is 7F. I'm unable to do that. I'm purchasing one, you know, equipment to write like NPTEL and all. So I'm just trying to do that, but I'm unable to do. First I prepare myself, then I will do. To take the classes and all, it will be better for me. So, can you see my page? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Say accumulator is 7F. Say accumulator is 7F. I am using a instructions in for 8085. In 8051 there is a difference INC, but in say 8085 INR A. What will be happen accumulator after the instructions? After the instruction, what will be the content of accumulator? Huh? सर बोलो। इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से. तो कितना होगा accumulator में? कितना होगा? 80 होगा? Zeros. 80 होगा? Yes or no? Yes. 7F plus 1 80 होता है. जैसे 79 के बाद होता है, ऐसा इधर होता है. Is it clear? हाँ सर एक्सेट सर. Yes, sir. तो 7F मतलब क्या है? 0 1 1 1 1 1 1 1, right? 80 मतलब क्या है? 1 0 0 0 0 0 0 0. If result greater than the 7 bit, देखो result जब 7 bit से बड़ा होगा, when result greater than the 7 bit, then affect the 8 bit, bit number 8, affect the bit number 8. So means this bit is affected. So then overflow flag will be set, OV flag will be set. Same as in 8086. But only the difference is that in 8086 there are 2 type of operation. One is a 8-bit operation, another is a 16-bit operation. But over here only you know 8-bit operation is possible. It's clear to all of you? क्या इफेक्ट कैसे हुआ क्या मतलब सर मतलब नहीं समझे. इफेक्ट sir. कैसे हुआ? INR A मतलब क्या हुआ? ए को इंक्रीमेंट करेगा 1 सर ए. हाँ ए प्लस इंक्रीमेंट हो टू गया. A plus 1. ए प्लस 1. तो 7A plus 1 करने से 80 नहीं होता है. हाँ 80. यस सर. 80. 7F का बाइनरी में क्या था? 0 1 1 1 1 1 1 1. 1 80 में बाइनरी मतलब क्या? 1 all are 0. यस सर. रिजल्ट कभी भी 7 बिट
सातों बीट के से ज्यादा हो जाएगा तो ये बीट को इफेक्ट करता है। ये बीट को इफेक्ट करता है मतलब ये है साइन मैग्नीट्यूड बीट। साइन मैग्नीट्यूड बीट को इफेक्ट करेगा मतलब साइन मैग्नीट्यूड बीट को इफेक्ट करने से सबसे बड़ा जो दिक्कत है तुम्हारा you cannot understand whether the number is positive or negative. Means it's 0 means it's a positive, it's 1 means it's a negative. So if result greater than the 7 bit, it affect the 8 bit. So in 7 bit which will be affect the 8 bit, means in 8 bit operation 8 bit का operation होगा तो result 7 bit से ज्यादा होगा if result greater than the 7 bit in 8 bit operation, then overflow flag will be set. On the other hand, it can be say in 8086, in not in 8051. 8086 में क्या होता है 16 bit का भी operations है and 8 bit का भी operations है, दोनों ही है। 16 bit का operations भी है, 8 bit का operations भी है। तो 16 bit 8 bit दोनों का operations होता है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है ना, उधर में overflow flag का definitions है result if greater than the 7 bit in 8 bit operation or result greater than the 15 bit in 16 bit operation, then overflow flag will be set, then OV flag will be set to 1. Is it clear? It's clear to all of you? इसमें मतलब दो केस है सर, मतलब जैसे 7 मोर देन 7 बिट रहेगा तब सेट होगा। इधर दो केसेस नहीं है, इधर 8 बिट का ही होता है ऑपरेशंस, मगर 8086 में सिर्फ है। हम तो तीनों का कंपेयर करके पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या डिफरेंस है। अलग अलग को याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें सिर्फ एक केस है ना, इधर 8 बिट ऑपरेशंस ही होता है, मगर आई एम टॉकिंग अबाउट द 8086, देन इट मे बी 16 बिट, मे बी 8 बिट। 16 बिट ऑपरेशन होगा तो 15 बिट से ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा। 8 बिट का ऑपरेशन होगा तो 7 बिट से ज्यादा होगा तो होगा। यस सर। It's clear to you? Yes sir. Any queries? Next is F0. F0 is I have already told to you in the yesterday. F0 is a special kind of flag bit. जैसे तुम्हारा रजिस्टर्स होता है, एक मान के चलो एक्यूमुलेटर ए रजिस्टर्स, कितना बिट का डेटा यू कैन स्टोर, कितना बिट का डेटा यू कैन स्टोर, बोलो। 8 बिट डेटा यू कैन स्टोर, 8 बिट रजिस्टर इसीलिए है ना। तो 8 बिट का डेटा यू कैन स्टोर, बट यू नो फॉर F0 আমার ঘরে একটা লাল রঙের পেন আছে, দিয়ে যাও তো। But here F0 is a 1 bit register. You can store 0 or 1 over here, means the binary number you can store. This is a general purpose flag bit, you can say general purpose flag bit, general purpose flag bit which can be stored any particular bit, general purpose flag bit which can be used to store any particular bit, either 0 or 1, any one can be stored. Is it clear? F0 is only for storing the any particular bit, 0 stored or 1 stored. So 0 আজকে একটা জিনিস কিনেছি, এটা পড়ানোর জন্যই কিনেছি। So 0 or 1, is it clear? Yes sir. Any queries if you have, you can ask me. So F0 is used only for storing any particular bit, only storing for particular bit, not any byte. Remember, it's used only for storing the any particular bit. It's clear to you? Is it clear? किसी का कोई डाउट्स है इसमें F0 को लेकर? सर क्या बोले सर? F0 को लेकर किसी का डाउट्स है? रजिस्टर है, 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट F0 कैन स्टोर 0 और 1.
इट्स क्लियर? सर ये 0 और 1 आएगा कहाँ से? बोलो मतलब बोलो बोलो। किसका 0 और 1 नहीं समझ में। F0 इज ए रजिस्टर, इसके अंदर तुम 0 भी स्टोर कर सकते हो, 1 भी स्टोर कर सकते हो, कोई जगह से कॉपी करके भी रख सकते हो। सिर्फ ये जो एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर तुम लोग पढ़े हो 8 बिट का पढ़े हो, मतलब उसमें कोई 8 बिट का डेटा तुम लोग कॉपी करके रख सकते हो, तुम लोग स्टोर करके रख सकते हो। बट F0 इज यूज्ड ओनली फॉर स्टोरिंग द 0 और 1, नॉट हायर देन दैट। आइदर 0 कैन स्टोर कर सकते हो और 1 कैन स्टोर कर सकते हो, मतलब बाइनरी एक डिजिट का रजिस्टर बोल सकते हो, एक डिजिट का, 8 बिट का है, इधर 1 बिट का है, सिंगल बिट का है, 1 बिट का रजिस्टर यू कैन से। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी का कोई डाउट है तो बोलो, किसी का कोई डाउट है? सर सिर्फ 1 बिट का ही। 1 बिट का ही तुम स्टोर कर सकते हो, 1 कर सकते हो। कैसे 1 करोगे? जैसे मान के चलो सेट बी F0, मतलब ये 0 ए बिट 1 हो जाएगा। हम लोग सेट बी F0 नहीं बोलते हैं, F0 के जगह में हम लोग बोलते हैं सेट बी। देखो ऊपर में देखो F0 के ऊपर 5 है, तो सेट बी PSW.5, तो इसके बाद F0 जो बीट होगा वो 1 होगा, तुमको कोई चाहिए तो। जैसे CLR B PSW.5, मतलब F0 will be 0. Is it clear? Is it clear? इसके अंदर Set कॉपी and भी कर clear सकते हैं, sir. इसके अंदर कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे? मान के चलो मूव PSW.5, 50H, PSW.5, 50H। ये 50H किधर से मिलेगा सर? बोलो 50H किधर से मिलेगा? I think this is in this class I am described. If you can recall, there is a area is called bit addressable area. Can you recall this one? यस सर। यस सर। 20 से लेकर 2F तक, ये 20 से लेकर 2F तक को मैंने डिस्क्राइब किया था। इधर देखो 20 मेमोरी लोकेशन, 21 मेमोरी लोकेशन, हर एक में 8-8 करके बीट एड्रेस। इसके अंदर मैंने बोला था ऐसे 5C बीट एड्रेस होगा, ऐसे इसके अंदर कोई ना कोई जगह में 50 भी एक बीट एड्रेस होगा, 50। सो ये जो बीट एड्रेस मतलब इस बीट में भी 0 और 1 है, तो ये बीट एड्रेस का कंटेंट आ जाएगा इधर। अभी तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर आप कभी भी ऐसा भी लिख सकते हो मूव A, 50H और मूव PSW.5, 50H, तो ये इधर में ये यूज्ड होगा एज अ बीट एड्रेस, इधर में ये यूज्ड होगा एज अ बाइट एड्रेस। इधर में यूज होगा एज अ बीट एड्रेस, इधर में यूज होगा एज अ बाइट एड्रेस। इज इट क्लियर? Is it clear to you? Is it clear to you? Any queries if you have, you can ask me. But So bit address और byte address समझ में नहीं आया। बीट एड्रेस इधर बोले थे मैंने, ये सारा बाइट एड्रेस है, ये सारा बीट एड्रेस है, जो मैंने लिखा था बीट एड्रेस, ये बाइट एड्रेस। तो ये कभी कभी बीट एड्रेस हो जा रहा है, कभी कभी बाइट एड्रेस हो जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को पता कैसे चल रहा है जो ये बीट एड्रेस होगा क्या बाइट एड्रेस होगा? माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा इसके ऊपर, ये 8 बिट रजिस्टर होगा तो ये बाइट एड्रेस के हिसाब से ट्रीट करेगा,
ये बीट एड्रेस बीट होगा, वह सिंगल बीट, वन बीट कोई रजिस्टर होगा तो तब ये बीट एड्रेस होगा। 8 बिट होगा तो बाइट एड्रेस के हिसाब से ट्रीट करेगा, सिंगल बिट होगा तो बीट एड्रेस के हिसाब से ट्रीट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? पर सर PSW 0.5 तो वो तो बिट एड्रेस ही है ना, उसमें तो 0 और 1 ही तो हो सकता स्टोर है कर ना। सकता है, इसीलिए तो ये बीट एड्रेस हाँ। सही लेगा, 0 और 1 ही ले सकता है। उससे ऐसा नहीं जो 50H का ABCD कुछ भी है वो आ जाएगा PSW.5 में, वो सिंगल एक ही बिट स्टोर कर सकता है। वो कैसे लेगा उतना सारा? यस सर। यस सर, क्लियर सर। सर डायरेक्ट MBI करके नहीं डाल सकते? MBI F01। हाँ, F0 नहीं, F0 के जगह में PSW.5 कर सकते हैं। इधर MVI नहीं होता है, इधर मूव होता है, वो ऐसे करके करना पड़ेगा। फिर मूव इंस्ट्रक्शन ऐसा होगा 5#01H, 01 भी नहीं 1H दो तभी चलेगा, 01 भी दो तो भी चलेगा। इसीलिए तो ये इतना बड़ा इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखेंगे, इसीलिए तो हम सेट भी कर रहे हैं, सेट भी F0 और सेट भी PSW.5। उसे क्लियर करना है तो क्लियर करो। इधर MVI नहीं है इंस्ट्रक्शन, वो 85 में था। इज इट क्लियर? यस सर। चलो देखते हैं यस अभी। सर। ये फ्लैग का फंक्शंस है जो मैंने सारा डिस्क्राइब किया। GF0 GF1 इज यूज्ड फॉर ए सिलेक्शन ऑफ द बैंक। ये जो चारों बैंक था, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, जो मैंने डिस्क्राइब किया, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ये जो चारों बैंक 0, 1, 2, 3, इसको सिलेक्शन करने के लिए RS0 RS1 यूज्ड होता है। ये मैंने बोला था पैरिटी फ्लैग का डिफरेंस है। ये देखो बैंक सिलेक्शंस 0, 0, बैंक 0, 0, 1, बैंक 1, 2, बैंक 3, बैंक and bank 2 and bank 3. Is it clear to all of you? RS0 RS1, 0, 0 means bank 1, 0, 1 means bank 0, 0 means bank 0, 0, 1 means bank 1, 1, 0 means bank 2, 1, 1 means bank 3। इधर में देखो चारों बैंक था, ये बैंक सिलेक्शन करने के लिए ये RS0 RS1 यूज्ड होता है, राइट? मैंने बोला भी था बैंक 2 का R5 का एड्रेस क्या होगा, बैंक 2 R5 क्या होगा? बोलो। बोलो। बोलो क्या होगा? मैंने तो सिखाया था तुम लोगों को। बैंक 2 R5 का क्या होगा? R0 का क्या है एड्रेस? 15H। 10H 15H, 15H। R0 का হচ্ছে 10, 11, 12, 13, 14, 15। So R5 is 15. Next, coming into that particular region, remember RS0 and RS1 is a PSW.3 and PSW.4. Remember these two. RS0 is PSW.3 and RS1 is PSW.4. Write down these two questions and tell me the solutions. Means MBI A, 30H and add A, 2F. After these additions, which flag will be set and which flag will be reset? Tell me. Which flag will be set and which flag will be reset? 38 plus 2F क्या होगा सर? एडिशन करके क्या होगा बोलो? बोलो।
38 प्लस 2f क्या होगा? हम्म, कोई है क्या? नहीं है, सो गया सर 6 6 7 सर है। 6 7 6 7 67 ओके सर, इन दोनों ऐड करके कैरी आया था यस Yes. सर जो इधर गया था, तो इसके कारण ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा। इज इट क्लियर? यस सर यस सर सर इसके बाद कोई कैरी आया नो सर नो नो सर सर तो कैरी फ्लैग क्या होगा? 0 होगा। 0 0 यस सर 67 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। हाउ मेनी वंस? सर 5 ऑड नंबर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 इज ए ऑड नंबर। ऑड होने से पैरिटी फ्लैग क्या होता है इधर? सेट हो जाएगा सर यहाँ पे यहाँ सेट पे हो सेट जाएगा होता है 1 हो जाएगा सर। देखो मैंने तो पढ़ाया था। 8085 के अपोजिट हो जाए सर हाँ देखो, पैरिटी फ्लैग रजिस्टर इज ऑड। 885 में इवन था, इधर ऑड, तो पैरिटी फ्लैग विल बी 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर सर यस सर नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट में एक कैरी फ्लैग के साथ ऐड ओवरफ्लो होगा, मान के चलो सेमी 9C। ओवरफ्लो फ्लैग तो बोला नहीं। 9C प्लस 64 क्या होगा ऐड करके? बोलो क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? सर ए 100 AC मतलब ये कौन कौन सा सेट होगा? मतलब AC सर सेट होगा ना, अभी अभी फिर अभी उसके बाद ये कैरी 100 ही होगा क्या? क्या दूसरा होगा? 100 100 ठीक होगा है। नहीं सर 100 ही होगा। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा? इधर में ऐड करके सेट कैरी आया है, हाँ सर कैरी आया, यस इधर सर पास किया तो ये कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट सेट। हो गया कैरी फ्लैग क्या है? इधर कैरी आया है देखो, उधर भी जनरेट हुआ कैरी तो कैरी फ्लैग 1। इज इट क्लियर? यस सर यस ये सर ये 1 हो रहा है इसलिए कैरी फ्लैग सेट। नेक्स्ट 0 0 रिजल्ट कितना है? रिजल्ट कितना है? इसका रिजल्ट कितना है बाइन एडिशन करके? रिजल्ट कितना सर आया? बाइनरी में सर ना बाइनरी एमनी हेक्साडेसिमल में बोलो ना। 100 100 100 नहीं सर आया, 0 0 आया। 1 वो इज अ कैरी, साइन हो गया 1 कैरी इज अ कैरी। कैरी 0 यस 0 सर रिजल्ट आया। 0 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। 0 0 0 0 0 0 0 0। हाउ मेनी वंस? 0 0 वंस मतलब इवन और ऑड। 0 को हम लोग इवन नंबर पकड़ता है, इसलिए 0। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर यस सर यस सर Okay. Next, internal RAM structure is very important. I already described to you. Just एक बार go through कर लो, एकदम सेम टू सेम बोला। 002 1F ये लोकेशंस जो है, इसमें 32 रजिस्टर रहता है। R02 R7 कितना रजिस्टर रहता था? कितना? मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी है, बोलो कितना है अभी? कितना रजिस्टर्स है बोलो? देखो कितना है? R02 R7 कितना होता है?
बोलो 80 से 87 कितना होता है? अरे गिनती करो 80 से 87 कितना सर होता है? 8 सर 8 8 सर 8 है, टोटल 8 32 है, हो गया सर। 8 तो चलो 4 बैंक में है, तो हाँ 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 32, टोटल 32। तो 32 रजिस्टर्स इज देयर, राइट? देखो मैंने बोला इधर पॉइंट नंबर 2 32 रजिस्टर्स, 00 to 7F रहता है इंटरनल रैम, राइट? अभी ये टोटल 8 बाइट्स लोकेशन 30 to 30F आर कॉल नॉर्मल एरिया और स्केच पैड और यू नो बाइट एड्रेसेबल एरिया. 20 to 2F is called bit addressable area, okay, and 32 00 to 1F are called is a assigned for register bank. अभी देखो रजिस्टर बैंक कैसा होता है. ये रजिस्टर बैंक मैंने ऐसे करके दिखाया था तुम लोगों को, मैंने ऐसे करके दिखाया था तुम लोगों को. अभी इसको फास्टली करेंगे. बैंक 0 R0 का लोकेशन है 00 01 02 ऐसे करके 07 तक जाएगा. बैंक 1 के लिए 08 से 0F तक जाएगा. बैंक 2 के लिए 10 से 17 जाएगा एंड बैंक 3 के लिए 18 से 1F तक जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर। Is it clear to all of you? Yes. Very good. This is the bit addressable area in 20 00 to 07 जो मैंने दिखाया. ये है बीट एड्रेस, ये है बाइट एड्रेस. और ये देखो हर एक लोकेशंस में अलग अलग है. कैसे बीट एड्रेस से बाइट एड्रेस मिलेगा, कैसे बाइट एड्रेस से बीट एड्रेस मिलेगा. आई एम गिवन एग्जांपल आल्सो. 5C मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, देख लेना. 5C बीट एड्रेस होगा तो बाइट एड्रेस क्या होगा, कौन सा बीट में पड़ेगा. इधर में बीट भी है, इधर उल्टा लिखा है, इधर में होगा D0 D1 D2 D3 अप टू D7. हम इधर से लिखाया था D0 से लेकर D7 तक, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है. ठीक है. This is the total, you know, internal RAM. First bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Next 20 to 2F is nothing but a bit addressable area. Next general purpose RAM is 30 to 7F. Remember default register bank for R0 to R7. तुम लोग कोई बैंक सिलेक्शन नहीं करोगे तो R0 to R7 बैंक 0 का ही होगा. हाँ बोलो सर. स्क्रीन मतलब कॉपी में बता रहे हैं कि सर प्रेजेंट कर रहे हैं सर स्क्रीन, क्यों पता नहीं चलता. स्क्रीन में बोल रहे हैं. कॉपी में भी वही है, स्क्रीन में भी वही है. स्लाइड में देखो, ये मैंने बोला है डिफॉल्ट. स्लाइड नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर. आप देखो डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक 0, हर एक टाइम में बैंक 0 ही सिलेक्शन रहता है. उसके बाद बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3. और नेक्स्ट 20 to 2F is called bit addressable area. देन उसके बाद 30 to 7F is called general purpose RAM और byte addressable area. Is it clear? Clear to you? Is it clear to you? yes sir. Okay. Next, this program is very, very important. Just see set B PSW.4. बोलो तो ये R0, #99 मतलब क्या है? R0, #99 मैंने पढ़ाया भी था. ये भी 4 इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था. ये पहला इंस्ट्रक्शन था. R0, #99 मतलब क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस है? सर बोलो. इमीडिएट हैं? सर R0 में 99 हेक्साडेसिमल में ऐड करना, मतलब उसमें पुट R0 में R0 में ऐड करना मतलब समझ में नहीं आया. सर मतलब 99H चला जाएगा. R0 में 99H चला जाएगा. मतलब R0 में कोई भी डेटा है उसको डिलीट करके 99 नहीं स्टोर होगा. Am I right? yes sir.
99H will be immediately stored if any data previously stored into the R0 that will be deleted completely. सर हैश नहीं रहेगा तो क्या होगा? डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा। नहीं हैश नहीं होगा तो बोलो सोनम। हाँ एड्रेस की तरह एक्ट करेगा। Very good. 99H then it will be act as an address and the content of that particular address will be copied into the R0 register, right? So इधर तो देखो, इधर में जो बोला है 99H automatically stored into the R0. 99H will be automatically stored into the R0. So R0 के अंदर 99H स्टोर होगा। अभी सेट बी पीएसडब्ल्यू बाय डिफॉल्ट ये सारा जीरो रहता है, psw.3 एंड psw.4 दोनों जीरो रहता है। अभी psw.4 को मैंने सेट बी किया, मतलब क्या किया? सेट बी करने से क्या होगा? जीरो होगा क्या 1 होगा? बोलो, अभी तो दिखाया मैंने सेट बी psw.5 दिखाया नहीं? मैंने दिखाया ना सेट बी psw.5। सेट बी करने के बाद क्या होता है? जीरो होता है क्या 1 होता है? F0 फ्लैग सेट हो जाता है। F0 फ्लैग सेट हो जाता है तो दूसरी बात है उसमें 1 हो जाता है। am I right or not? हाँ भाई 1 हो जाता है सर, 1 हो जाता है। तो सेट बी psw.4 करने से क्या होगा? बोलो, psw.4 करने से क्या होगा? जीरो हो जाएगा। psw.4 करने से सेट बी psw.4 करने से जीरो होगा। यस सर। कैसे? इधर में 1 हो रहा है, सेट बी psw.5 करने से इधर में कैसे जीरो होगा? तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0100 आएगा। क्या 0100 आएगा? सेट बी psw.4 मतलब ये psw.4 है, ऊपर में देखो psw.4 मतलब ये है psw.4 मतलब rs1 will be 1, rs1 will be 1, psw.4 ये 1 हो जाएगा सेट बी psw.4 करने से। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे सेट बी psw.5 मैंने किया था, f0 is 1 हुआ था। मैंने हमारा कॉपी में देखो सेट बी psw.5 ये 1 हुआ था। अभी स्लाइड में देखो सेट बी psw.4 ये क्या होगा? psw.4 क्या होगा आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस? हाँ बोलो। 1 सर। 1 होगा। सेट बी psw.4 मतलब psw.4 1 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट दोनों 0 रहता है, अभी ये 1 हो जाएगा। psw.3 क्या होगा? कोई चेंजेस किया मैंने? बोलो। नो सर। चेंजेस नहीं किया तो जीरो ही है, तो हो जाएगा 10। हाँ यस सर। psw.4 को मैंने 1 किया, इसको तो जीरो ही रहने दिया, हम कुछ चेंज नहीं किया, तो जीरो ही रह गया। 10 हो गया, तो 10 होने से क्या होगा? कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा? बोलो। बैंक 3 बैंक 2 सर, बैंक 2 सर। बैंक 2 10 इज द बैंक 2 राइट। बैंक बैंक 2 का कौन सा मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट है? बैंक 2 किधर से स्टार्ट है? बैंक 2 किधर से स्टार्ट है सर? 08 10 से 10H 10H बैंक 2 10 से स्टार्ट है। अभी R0 के अंदर 99H स्टोर कर रहा है, मतलब 10H में 99H स्टोर कर रहा है। यही देखो लिखा है RAM लोकेशन 10H हैज द वैल्यू 99H। ओके। बैंक 2 का R1 का कितना लोकेशन है? बोलो। R1 का कितना लोकेशन है?
पूंजी हाँ R1 का वैल्यू कितना है बोलो? सर 1 सर, तो 0 1 लोकेशन 1 1 1 0, तो इसे हो 1 1, इसका है वो 0 1, इसका होगा 1 1, इट विल बी 1 1, राइट? राइट सर। तो 1 1, तो 1 1 होने से क्या होगा हमारा? 1 1 में क्या स्टोर होगा? 85H। R1 में 85 स्टोर हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा है रैम लोकेशन 11H has the value 85H। नेक्स्ट R2 सर में तो क्या स्टोर हो रहा है? हाँ बोलो। सर R1 लोकेशन तो 1 बिट का है ना सर, तो 85H कैसे हो स्टोर करेंगे सर? 1 बिट का कैसे होगा? इधर वाला बिट एड्रेस, ये तो रजिस्टर है, एक एक रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर है, 32 रजिस्टर्स है, हर एक रजिस्टर्स में 8 बिट करके लोकेशंस है। तुम दो इधर में भी एक बिट लोकेशंस है, इधर में भी एक ए लोकेशंस है, इसको बाइट लोकेशंस है, नॉट ए बिट लोकेशंस, दीज आर द बाइट लोकेशंस। ये सारा का सारा बाइट लोकेशंस है। इसके अंदर 20 से 2F ये है बिट लोकेशंस, इसमें तुम बिट स्टोर कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर है, यस सर, क्लियर। तो मैंने ये लिखा था, देखो ना, बैंक 3 R4 का कितना लोकेशन होगा, ऐसा करके हम लोकेशन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। तो R1 का लोकेशन कितना हो गया? 11। तो R2 का लोकेशन कितना होगा? 12। तो 12H में क्या स्टोर होगा? 3F। देखो R2 के अंदर 3F स्टोर किया, तो मैंने इधर लिख दिया रैम लोकेशन 12H हैज द वैल्यू 3F। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, a RAM location 15H has the value 12H। क्यों? R5 के लिए 12H है, R7 के लिए 17H है, इसलिए RAM location 17H has the value 63H। Okay, is it clear to all of you? Is it clear to all of you? सर हाँ बोलो, कोई क्वेरीज है? Any queries if you have, you can ask me. सर सेट बी PSW.4 वाला थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए ना, नहीं समझ में आया। हाँ सेट बी PSW.5 देखो किए थे, F0 को मैंने 1 बोला था, तो सेट बी PSW.4 करने से क्या होगा? सेट बी PSW.4 बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला? RS1 RS0 वैल्यू क्या होगा? RS1 क्या होगा? RS0 क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं करने से दोनों ही 0 0 रहता है। Am I right? यस सर। बाय डिफॉल्ट दोनों ही 0 0 रहता है। अभी सेट भी PSW.4 करने से क्या होगा? ये PSW.4 कौन से बैंक का 0 0 रहता है? है? सर बैंक जो है ना उसमें वो नहीं समझ में आया, कौन सा बैंक का क्या 0 होगा क्या 1 होगा? वही कर रहे हैं। देखो PSW.4 मतलब RS1, RS0 मतलब PSW.3, राइट? हमारा कॉपी में देखो RS1 अभी 0 हो गया, RS0 0 ही है, दोनों ही 0 0 रहता है बाय डिफॉल्ट। मैंने सेट भी करना मतलब ये बिट को 1 कर देना, मतलब PSW.4 को मैंने 1 कर रहा हूं, मतलब RS1 1 कर दे रहा हूं, राइट? RS1 0 था पहले, अभी क्या हो जाएगा सेट बी के बाद? 1 0। इज इट क्लियर और नॉट? ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो पहले? यस सर। हम फिर से बोल रहा हूं एक बार, तुम्हारे जैसे ये सर इतना देर में आया, हमको लगा नहीं समझ में आया। PSW.4 मतलब RS1 is 0, RS1 का मतलब ही है PSW.4, RS0 का मतलब ही है PSW.3। बाय डिफॉल्ट दोनों 0 0 ही रहता है, तुम कुछ चेंज नहीं करोगे तो 0 0 ही रहेगा।
रीसेट करने के बाद ही ये 0 0 रह जाता है। अभी क्या किया, सेट बी psw.4 मतलब ये rs psw.4 को मैंने 1 कर दिया, तो क्या होगा 1 0। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 0 हो गया। तो 1 0 1 0 1 0 होने से मतलब rs 1 तो 1 ही हो गया, मगर rs 0 को तो कुछ चेंज नहीं किया, तो 0 हो गया। तो 1 0 1 0 मतलब कौन सा बैंक सिलेक्शन होता है Bank 3. ना? देखो ना Yes, ऊपर sir, में bank 2. Yes, बैंक sir, 2 bank 2. Yes, sir, bank 2. बैंक 2। अभी बैंक 2 का लोकेशन क्या होता है? 1 0 से 1 7। इसको तुम लोग इधर में भी देखोगे, देखो बैंक 2 का लोकेशन किधर से स्टार्ट है? 1 0 से 1 7. है, तो R0 का लोकेशन क्या है? 1 0. R1 का क्या है? 1 1. R5 का क्या है? 1 5. R7? 1 7. यही तो किया है मैंने इधर, यही तो किया है। R0 के अंदर 99 नहीं स्टोर कर रहा है, मतलब बैंक 2 ऐसे सिलेक्शन हो ही गया है, ऐसा मतलब मैं तो लिखा भी है सिलेक्ट बैंक 2। तो बैंक 2 के R0 के अंदर 99 स्टोर करना, मतलब 10H में 99 नहीं स्टोर करना। R1 में 85H स्टोर करना, मतलब 11H में 85H स्टोर करना। R2 मतलब 12H में 3F स्टोर करना। R7 में 63 स्टोर करना के मतलब 17H में 63 स्टोर करना। R5 में 12H स्टोर करना मतलब 15H में 12H स्टोर करना। बोलो क्या क्वेरीज है, और कोई क्वेरीज है तो बताओ। नो प्रॉब्लम, आई कैन एक्सप्लेन यू 100 टाइम्स। No, sir, अब क्लियर है। सबका क्लियर है? किसी का कोई डाउट्स है? किसी का कोई डाउट्स है तो बोलो। किसी का कोई डाउट्स है तो बोलो। अभी यही प्रोग्राम हम थोड़ा मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। सेट बी psw.3 सेट बी psw.4 ओके। मूव, हमारा कॉपी में देखो, देख पा रहे हो ना? मूव R0 हैश 99H, मूव जो लिखा है R1 हैश 85H, मूव R2 हैश 3FH, मूव R7 हैश 63H, and move R5 हैश 12H। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है मान के चलो। अभी बोलो क्या होगा? कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा? शोरम बोलो। सर बैंक 1। नो सर बैंक 2 सेलेक्ट होगा। सेट बी PSW4 लिखा हुआ तो बैंक नो सर। अरे बचा क्या है? बाकी दो जन बोल दो, बाबलू बोल दो। हाँ कौन सा? बैंक 3। बाय डिफॉल्ट दोनों तो अभी 0 पे रहेगा ना? बाय डिफॉल्ट दोनों 0 में रहता है। एग्जैक्टली बाबली। यस सर। RS 0 सॉरी RS1 RS0 दोनों ही पहला स्टेट में 0 0 रहता है। RS1 का नाम क्या है? PSW.4। RS0 का क्या नाम है? PSW.3। ओके। अभी सेट भी PSW.3 करने से क्या होगा? RS01 PS 1 हो जाएगा सर। RS
0 0 1 हो जाएगा। इज इट Yes, क्लियर? yes sir. नेक्स्ट सर, PSW.4 करने से क्या होगा? सर RS 1 back to select। सर ये भी 1 हो जाएगा। ये भी मतलब क्या है? सर RS 1 1 हो जाएगा। RS1 1 हो जाएगा। तो 1 1 मतलब कौन सा बैंक Yes, sir. सिलेक्शन होता है? बैंक Bank 3। बैंक 3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes Yes। अभी बोलो रैम लोकेशंस क्या होगा? sir. ये जो लिखा है रैम लोकेशन 10H हैज द वैल्यू 99H, इधर क्या होगा? पहले तो बैंक 2 सिलेक्शन हुआ था, अभी तो बैंक 3 सिलेक्शन हुआ। बैंक 3 किधर से लोकेशन स्टार्ट है? 18H। 18H। तो R0 का लोकेशन क्या है? 1F। R0 का H R0 का लोकेशन क्या है? Sir 18H 18H। तो R0 में 99 स्टोर करना मतलब क्या है? 18H में 99 स्टोर कर। Very good. 18H में 99 तो स्टोर करना। लिखना पड़ेगा रैम लोकेशन 18H हैज द वैल्यू 99H। इज इट क्लियर? Yes sir. रैम लोकेशंस क्या बोल रहा था? रैम लोकेशंस 18H 18H। रैम लोकेशन 18H, इधर 10 के जगह में 18H होगा। 18H हैज द वैल्यू 99H। अभी R1 मतलब क्या है? बैंक 3 का R1 मतलब कितना एड्रेस है? R0 का एड्रेस कितना था? सर 19 होगा इसमें। 19 होगा R1 में। इसमें 19 है। Yes हाँ, sir. तो रैम लोकेशन 19H हैज द वैल्यू 85H। Yes sir. अभी R2 मतलब क्या होगा? 20 होगा सर। 20। 20 1A 1A होगा 20। 1A सर 1A। Yes 1A sir. हाँ। तो 1A 12 के जगह में होगा रैम लोकेशन 1AH हैज द वैल्यू 3FH। नेक्स्ट R7 मतलब क्या है? देखो किधर में खत्म हो रहा है? 1F 1F। 1F। तो R7 का एड्रेस है 1F, तो लिखना पड़ेगा 1FH हैज द वैल्यू 63H। R5 मतलब क्या होगा? R5 मतलब क्या होगा? 1D 1D। So 1DH has the value 12H. Is it clear to you? yes sir। Yes sir. Yes sir. Any queries if you have, you can ask me. Is it clear to all of you? Yes sir. Clear. yes sir। मान के चलो इस प्रोग्राम में हम थोड़ा और एक चेंज किया है, हमारा मर्जी हुआ हम चेंज किया, मतलब एक लाइन और ऐड किया। इसके बाद इधर में मैंने और एक इंस्ट्रक्शन लिखा CLR PSW.4 CLR PSW.4 इधर सर लिख तो दे फिर बैंक 2 सिलेक्ट हो जाएगा फिर सर। CLR PSW.4 ये इधर लिखा है। पहले कौन बैंक सिलेक्शन होगा? सर पहले बैंक 3 होगा, उसके बाद क्लियर। बैंक थ्री का R0 का वैल्यू क्या है? एड्रेस क्या है? सर 18 हाँ, तो 18H हैज द वैल्यू 99H। yes, R1 sir। मतलब क्या है? 19 सर। 19H हैज द वैल्यू 85H। R2 मतलब क्या है? 1A सर। 1H हैज द वैल्यू 3F। बट इसके बाद क्या हो रहा है? CLR PSW.4 मतलब PSW.4 मतलब कौन सा है? RS1। RS1। ये 0 One। हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। सेट भी करने से 1 होता है, क्लियर करने से 0 होता है। Yes sir. 01 मतलब कौन सा बैंक? बैंक 2। बैंक 1 बैंक 1। yes sir। बैंक 1 का R7 Yes, sir, मतलब बैंक क्या है? 1। हाँ। बैंक 1 का R7 मतलब कौन सा लोकेशन है?
बैंक 1 का R7 मतलब क्या है? सर 0F। तो लिखना पड़ेगा रैम लोकेशन 0AFH हैज द वैल्यू 63H। रैम लोकेशन 0AFH हैज द वैल्यू 63H। नेक्स्ट मूव R5, 12H क्या होगा इसमें? बोलो। इसमें भी तो बैंक 1 ही रहेगा। बैंक 1 ही रहेगा, बैंक तो चेंज नहीं किया, और बैंक 1 ही रहेगा। बैंक 1 का R5 मतलब कितना लोकेशन होगा? सर 0D। 0D। तो लिखना पड़ेगा रैम लोकेशन 0DH हैज द वैल्यू 12H। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो बोलो। बोलो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो। अविनाश, is clear to you? Yes, sir. Avinash, where is your friend Ashish? Sir, पता नहीं है अभी हमको। तो मुश्किल। It's clear to all of you? यस सर। उत्सव नेटवर्क चल रहा है ना आपका अभी? यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर, ऑलमोस्ट सर। ऑलमोस्ट। हमको ही पता नहीं चला आज तक, तुमको ऑलमोस्ट पता चल गया। नेक्स्ट, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो मैंने पहला दिन बताया था, क्या क्या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। These are the SCON, SBAP, IE, IP, all are described already. PCON, TCON, TMOD, TL0, TH0, TH1. These are the special function register with their corresponding locations. मैंने बोला था तुम ये कॉपी देखोगे, देखो बोला था मैंने 80 से लेकर FF तक SFR एरिया रहता है। 80 से लेकर FF तक यू नो SFR एरिया, 80 से लेकर FF तक, 80 से लेकर FF तक, 80 से लेकर FF तक SFR एरिया। देखो इधर में जितना सारा एड्रेस है सारा 80 से लेकर FF तक ही है, 80 से लेकर FF तक ही है। इज इट क्लियर? यस सर। सर तो इतना सब याद करके रखना होगा? ये कभी कभी आता है, कभी कभी आता है। देखना ये वो जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर क्वेश्चन है, इसमें भी एक दो क्वेश्चन आएगा। एक्यूमुलेटर का एड्रेस क्या है? ऐसा प्रोग्राम लिखने का टाइम कभी आता है, जरूरत नहीं पड़ता है। प्रोग्राम लिखने का टाइम कोई जरूरत नहीं पड़ता है, तो याद करने का कोई जरूरत एक्चुअली नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब इससे काम करोगे तो इससे ही प्रोग्राम लिख पाओगे, मेमोरी लोकेशन लिखने का जरूरत नहीं है। राइट? यस सर। And these are the special function register with the corresponding locations and all. Stack and stack pointer is very very important. तुम लोगों को मैंने बोला था stack pointer का by default वैल्यू कितना होता है? 0 0 0 है, 0 0 No, है। no sir. बाय डिफॉल्ट 0 by 0 default होता है। value no sir, no sir. रीसेट कंडीशन मैंने बोला था सारे रजिस्टर 0 होता है, सिर्फ एक रजिस्टर 0 नहीं होता है। उसका क्यों होता नहीं होता है हम बाद में बताएंगे, ये भी बोले थे। किसी का याद है? 07. 07, वेरी गुड। 07H। देखो मैंने ये दिखाया था तुम लोगों को, हर एक रजिस्टर 0 एक्सेप्ट PSW भी देखो 0, हर एक बिट PSW का 0, मगर ओनली डिफरेंस इज दैट रीसेट कंडीशन इसमें सिर्फ 07H होता है। ओके, इट्स क्लियर टू यू? यस सर। अभी देखो 07H क्यों होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा बैंक यूज होता है? व्हिच बैंक बाय डिफॉल्ट इज यूज्ड? व्हिच बैंक बाय डिफॉल्ट यूज्ड? हां 0 से। Bank 0. बैंक 0।
Yes, sir. स्टैक पॉइंटर में कोई डेटा स्टोर करने से पहले हम लोग पहले पढ़े थे स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, बट इधर स्टैक पॉइंटर ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड देन स्टोर द डेटा इनटू द स्टैक। तो 07 है, स्टैक पॉइंटर में क्या है, 07 है, रिमेंबर। स्टैक पॉइंटर में 07 है। सर बैंक 1 का एड्रेस क्या है? 08 सर। बैंक पहले 0 का एड्रेस बताओ, किधर से किधर है? बैंक 0 का एड्रेस किधर से किधर है? 00 से लेकर 07 07 तक। बैंक 1 का क्या है सर? 08 से F तक सर। 08 से 0F तक। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। अभी स्टैक में कोई डेटा घुसाने से स्टैक पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट होने से क्या होगा? स्टैक पॉइंटर क्या होगा? बोलो, एक इंक्रीमेंट होने से क्या होगा? हो जाएगा बैंक 2 बैंक 1 चला जाएगा 08 सर। हो जाएगा। तो स्टैक ऑलवेज यूज्ड बैंक 1, स्टैक ऑलवेज यूज्ड बैंक 1, बट फॉर register by default bank 0 is selected. For register bank 0 is selected, for stack bank 1 is selected. That's why stack pointer value is 078. नहीं तो ओवरलैप हो जाता था, स्टैक एंड रजिस्टर के बीच में ओवरलैप हो जाता था। एक डेटा तुम्हारे रजिस्टर में था, उसको डिलीट कर देता था स्टैक। तो ये डिलीट ना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बैंक पॉइंटेड इन अ बैंक 1 and register is pointed bank 0. Is it clear? Is it clear to you? ये SP को +1 क्यों किए? जब भी कोई डेटा तुम पुश पॉप करोगे, जब भी कोई डेटा तुम पुश पॉप करोगे, मतलब पुश मान के चलो मैंने पुश किया पुश 30H, तो 30H मेमोरी लोकेशंस का जो कंटेंट है वो स्टैक में जाएगा। 30H मेमोरी लोकेशंस में मान के चलो AB है, वो डेटा चला जाएगा स्टैक में। ये जाने से पहले स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर +1 होगा। यही रूल्स है। 85 में हम पढ़ाए थे स्टैक ऑलवेज डिक्रीमेंटेड, बट इधर स्टैक ऑलवेज इंक्रीमेंटल। इज इट क्लियर? तो ये 08H में एक्चुअली AB स्टोर हो जाएगा, ये AB 08H में स्टोर हो जाएगा। अभी मान के चलो तुम रजिस्टर भी प्रोग्राम में यूज कर रहे थे, रजिस्टर में 12 था, तो ये 07 ने ना होकर 00 होने से इस टाइम में ये भी 00 होता, 01 होता था। ये 07 ना होकर 01 होने से 00 होने से ये क्या होता था? 01 होता था। मान के चलो R1 में तुम्हारा 12 है प्रोग्राम के कारण, तो 01 में तुम्हारा होना चाहिए था AB, ऑलरेडी 01 में 12 है, तो 12 को डिलीट करके AB स्टोर होगा। तो ओवरलैप हो जाएगा तुम्हारा रजिस्टर के साथ, तुम्हारा स्टैक ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप ना हो इसीलिए इसको 08 में दिया है। मान के चलो तुम्हारा रोल नंबर किधर से किधर था फर्स्ट ईयर में, जब तुम लोग फर्स्ट ईयर में थे? बोलो। मान के चलो 1 से 20 था। इज इट क्लियर? 1 से 20 था तुम्हारा रोल नंबर। ओके, मैं लेटरल एंट्री का भी 1 से देंगे तो ओवरलैप नहीं होगा। यस सर। तो लेटरल एंट्री का क्या देना चाहिए था? 21 से देना चाहिए था रेगुलर रोल करने के लिए। सही किया है। देखो पुश में 07H रखा क्यों? जब भी स्टैक में इंक्रीमेंट करेगा ये 08H में चला जाएगा। 08H मतलब बैंक 1 में चला जाएगा। बैंक 1 में चला जाएगा मतलब ये ओवरलैप नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तुम चेंज करना चाहते हो तो चेंज करा सकते हो एसपी का वैल्यू। एसपी में तुम 20 दो, 30 दो, कुछ भी दो जो स्टैक पॉइंटर का तुम पॉइंट करना चाहते हो वो चेंज तो कर ही सकते हो, मगर बाय डिफॉल्ट ये रहता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर।
सो बेसिकली ये तो हम सारा बोले ही थे, बाइट एड्रेस एंड बिट एड्रेस। कॉलेज पर बाद में बात करो। इज इट क्लियर? यस सर। ये मैंने पहले ही बोला था जो रैम लोकेशंस पर आया था, ये तो पहले बोला था। रजिस्टर्स ये भी बोल दिया। स्टैक, a stack is used to you know stack is used to store the data temporarily during any program executions, number one. Number two, 8-bit stack pointer is used to hold an internal RAM address which is called the top of the stack address. जब भी RAM stack में जो एड्रेस रहेगा उसको हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक एड्रेस बोलेंगे। जैसे 08H हो गया तो 08H अभी स्टैक पॉइंटर में रहेगा। नेक्स्ट, generally used bank 1 internal RAM as the stack, so the default value of pointer is address is 07H। स्टैक के लिए बैंक 1 यूज करेंगे, इसीलिए स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 07H रखा गया है। सर स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर डाटा सर होगा कि सर एड्रेस ऑफ द डाटा होगा सर? ना, डेटा ही होगा, एड्रेस का डेटा, कोई भी एड्रेस का डेटा, कोई भी रजिस्टर का डेटा स्टैक में स्टोर करना ही काम है। ये डेटा AB को स्टोर करेगा, नॉट 30H को स्टोर करेगा, AB को स्टोर करेगा। यस सर। When the data is retrieved from the stack, the byte is read from the stack and the stack pointer is decrement। जब स्टैक से डेटा निकाल लोगे, ये तो स्टैक में घुसा रहे हो, तब स्टैक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब रिट्रीव मतलब ले लोगे, तब स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। ये पुश पॉप कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस में स्टैक यूज होता है। इधर में दिया व्हेन द डेटा इज प्लेस्ड इन द स्टैक, स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बिफोर स्टोरिंग द डेटा ऑन द स्टैक। स्टोरिंग करने से पहले, मतलब पहले ही डेटा नहीं भेज देगा 07H में, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर डेटा भेजेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा फिर डेटा। देखो 07H था, उसके पहले 08H किया, उसके बाद उसमें स्टोर किया। और रिट्रीव करता है, रिट्रीव के टाइम में ये डिक्रीमेंट होता है। Next is memory interfacing. Memory interfacing I already described in 8085. Similar kind of things, थोड़ा different है। तो अब आज हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आज खत्म नहीं कर पाएंगे मेमोरी इंटरफेसिंग। टुमारो आई विल बी डिस्कस द मेमोरी इंटरफेसिंग। ओके ओके सर। सर मतलब स्टैक, सर हाँ बोलो। सर मतलब स्टैक पॉइंटर में जब हम लोग मतलब कि एग्जीक्यूट करेंगे कोई प्रोग्राम, तो एक इंक्रीमेंट होगा। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा वो प्रोग्राम तो डाटा यूज हो जाएगा, तो उसके बाद वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब अपना डिफॉल्ट वैल्यू। ना, स्टैक पहले क्यों यूज होता है, पहले सोचो स्टैक क्यों होता है। स्टैक कैसा है, स्टैक मान के चलो तुम्हारे पास जेब बहुत छोटा है। जेब मतलब तुम्हारे पास जो जेब है, पॉकेट मतलब पॉकेट जो है वो जेब मतलब जो है वो बहुत छोटा है। उस छोटे में तुम्हारे पास शायद 2 करोड़ रुपया है, तो तुम पहले उसके अंदर रुपया कुछ रखे थे, मान के चलो 5000 रुपया, उसमें आपको तुम्हारा जेब फिल हो गया था। अभी तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपया आया, तो तुम क्या करोगे, ये 5000 को पहले कोई दूसरा जगह में रखोगे, उसके बाद ये रुपया इस जेब को दूसरा काम के लिए यूज करोगे, हाँ या ना? हाँ सर। और भी एक स्टोरी सोचो, ये भी छोड़ दो। तुम्हारे घर में कढ़ाई कितना है? कढ़ाई जानते हो? कढ़ाई को तुम लोग क्या बोलते हो? कढ़ाई बोलते हो शायद। हाँ सर। कढ़ाई कितना है? 3 है सर। 3 है? बाप रे बाप, हमारे पास एक ही है। हमारे उसी में हम लोग का क्या होता है, मछली भी बनता है, उसी में हमारा क्या होता है,
मटन भी होता है, उसी में हम लोगों का क्या होता है, वो कुछ सब्जी भी बनाता है। तो कैसे बनाएगा? बनाने के बाद धो देंगे, उसके बाद फिर यूज करना होगा। बनाने के बाद धो देंगे, मगर क्या पूरा फेंक देंगे बाहर में? नहीं सर, स्टोर करेंगे उसको कहीं, पहले वाला जो था। उसको कोई जगह में स्टोर करेगा ना, हाँ हाँ। कोई बर्तन में, कोई किसी में स्टोर करेगा। दिस इज नथिंग बट अ स्टैक। वो रजिस्टर्स जो है, कढ़ाई जो रजिस्टर्स है, उसको तुम दूसरा कोई काम में यूज कर रहे हो, तो उसका सामान कोई दूसरा जगह में स्टोर कर दे रहे हो। मान के चलो फिर से गर्म करना है उसको, उसी सब्जी को, तो कैसे गर्म करोगे? अभी जो था उसको कहीं और स्टोर करेंगे और फिर उसको नो फिर से नो 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 डालेंगे। नो नो नो, सब बर्तन बर्तन में रख दिया, डायरेक्ट राइट। बना देंगे। अभी तुमको गर्म करना है। तुमको घर में जाना था दोपहर में, हम नहीं गया, हम रात में गया है खाना खाने के लिए। अभी जॉय यार आंसर नहीं करेगा। तो जब हम मान के चलो दोपहर में की जगह में रात में गया, तो हमको ठंडा खिलाओगे? नो सर, तो क्या करोगे उसको? कढ़ाई में डाल के फिर फिर से गरम गरम कर। करेंगे सर। कढ़ाई में डाल के फिर से गर्म करोगे, मतलब वो जो स्टैक में घुसाया था, मतलब वो बर्तन में जो दिया था, वो दिस इज नथिंग बट अ स्टैक। दिस इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, क्योंकि कढ़ाई अभी दूसरा काम में यूज होगा। अभी जो हुआ ना, वो जो कढ़ाई का जो सामान फिर से कढ़ाई में ला रहे हो, दिस इज अ पॉप ऑपरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सर एक समझ बार में? रिपीट कीजिए ना। तुम्हारे पास, हमारे घर में, तुम्हारे पास तो बहुत है, तुम लोग अमीर हो, हमारे पास घर में एक ही कढ़ाई है। कढ़ाई मतलब समझते हो? यस सुना? सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, कढ़ाई मतलब समझते हो। कढ़ाई में खाना बनता, मतलब सब्जी बनता है, मटन बनता है, चिकन बनता है, मछली बनता है। तो आज का हमारा, आज हम जय के घर में खाना जाएंगे, जय के घर में भी एक ही कढ़ाई था। उसमें पहले वो मछली बनाएगा, उसके बाद उसको मटन बनाएगा, फिर से उसके बाद सब्जी भी बनाएगा। तो पहले मान के चलो सब्जी बना लिया, अभी सब्जी बनाने के बाद उसी के अंदर मछली बनाएगा। नो सर। उसको क्या करेगा, दूसरा कोई बर्तन में रखेगा। यस यस सर। सर। बस सर। नहीं तो बाहर में फेंक देगा, तो दूसरा कभी कभी उसको जरूरत पड़े तो उसको सामान वापस नहीं ला सकते, क्योंकि रात में हम जाएंगे तो उसे गर्म करना है, कोई कुछ करना है, क्या दूसरा कुछ सामान बनाना है, तो उसको तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, जो बाहर में फेंक देगा। तो कोई बर्तन में रख दिया। इज इट क्लियर? यस सर। टिफिन बॉक्स जानते हो? टिफिन बॉक्स, टिफिन कैरियर। यस सर। 3 तरह का टिफिन बॉक्स होता है, 1 2 3 ऐसे करके ऊपर 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 लगा हुआ रहता है, ठीक है? सर देखे हो कभी ना, कभी नहीं देखे हो? देखे सर। यस सर। सर। वो एकदम नीचे वाला में मान के चलो स्टोर किया है, ठीक है? सब्जी नीचे वाला में स्टोर कर दिया। अभी उसी कढ़ाई में मछली बनाया। मछली को भी फिर से, क्योंकि चिकन मटन सब करना पड़ेगा ना, सर जा रहा है, नंबर देगा सर, नहीं तो जाई हर एक बार कम नंबर भी मिलते रहेगा, और वो ग्रुप में भेजते रहेगा। तो क्या यस। हुआ ना, क्या जय खराब खराब बोला क्या? नो सर, बहुत सही बोले सर। अच्छा ठीक है, तो हम कभी कभी ग्रुप देखता भी है, इसका चलता ये हुआ। तो नेक्स्ट क्या हुआ ना, अभी मान के चलो ये जो बर्तन हुआ, पहला में तुम सब्जी बनाया, राइट? नेक्स्ट हम मछली बनाया, मछली भी उसके बाद नेक्स्ट बर्तन में रखेंगे, मतलब जो टिफिन कैरियर बोला था उस सेकंड कुप में रखेंगे, राइट? उसके बाद हमको चिकन बनाना है, तो क्या करेंगे? फिर कढ़ाई का मछली रख, सेकंड बर्तन में रख के फिर चिकन बनाएंगे। अब उसके बाद मटन बनाना है, तो क्या करना, क्या करेंगे? चिकन को हटा के मटन बना देंगे। चिकन को हटा के मतलब फेंक देंगे? नो सर, फ्रिज में डाल देंगे। ओ फ्रिज में नहीं बाबा, वो जो टिफिन कैरियर के हिसाब से बोलो, तुम लोग एकदम समझ यस में आ सर, जाएगा। टिफिन बोलो। में डाल देंगे, टिफिन में और फिर मतलब, बनाएंगे तो टिफिन में मतलब मतलब फास्ट थर्ड में। ऊपर वाला। सब्जी, फास्ट सब्जी हो गया, सेकंड मछली हो गया, अभी थर्ड में डालोगे। थर्ड वन। थर्ड में डालोगे,
अभी थर्ड में तुम चिकन डाल दिया, अभी इसके बाद मछली ये बना रहे हो, तुमको मटन बना रहे हो, राइट? तो मटन भी तुमको मतलब बर्तन में रखना है, तो मटन में फोर्थ में रख दोगे। सो दीज आर द स्टैक। अभी सर आएगा, दोपहर में बोले थे आएंगे, अभी सर आ रहा है रात में, जाए तो एकदम गरम गरम खिलाएगा, नंबर ज्यादा गरम गरम मिलेगा ना, इसीलिए। तो जय क्या करेगा, वो उसको फिर से वो कढ़ाई में लेकर आएगा। पहला कौन सा कढ़ाई में लेकर आएगा? मटन। मटन, एग्जैक्टली, जो सबसे ऊपर में ऊपर जो सबसे था, जो टिफिन बॉक्स में सबसे ऊपर में था, उसी को लेकर आ जाएगा पहले। अभी टिफिन बॉक्स में सबसे टॉप ऑफ द स्टैक मतलब क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है? सर मटन। नो सर, मटन तो निकल गया सर। मटन जब निकल सेकंड चिकन वाला टिफिन करोगे तो ऊपर से निकल गया। अभी नीचे में क्या है उसका? सेकंड लेयर जो था सर, सेकंड लेयर ना, थर्ड लेयर। हम तो पहले सब्जी, उसके बाद मछली, उसके बाद चिकन, उसके बाद अच्छा मटन। सॉरी मटन निकल गया। अभी किसको पॉइंट कर रहा है? थर्ड अभी चिकन को पॉइंट कर रहा है। यस सर। मछली। मतलब एक डिक्रीमेंट हो गया। 0 से पहले 1 टिफिन बॉक्स, सेकंड टिफिन बॉक्स, थर्ड टिफिन बॉक्स, फोर्थ टिफिन बॉक्स में गया था, अभी आ गया 4 से थर्ड में आ गया। यस सर। अभी तुम्हारा चिकन गरम हो गया, सर को दे भी दिया। उसके बाद मटन गरम हो गया, सर को दे भी दिया। उसके बाद क्या गरम करेगा? सर जो सेकंड में तो मछली। ना चिकन गरम करेगा। चिकन जब गरम करेगा फिर बर्तन में लेगा, तो चिकन बर्तन में ले लेगा, तो क्या तुम्हारा रहेगा? स्टैक पॉइंटर क्या किधर आ जाएगा? किसको पॉइंट करेगा? मछली। मछली को। अभी मछली जब ले लेगा तो किसको पॉइंट करेगा? सब्जी। सब्जी, समथिंग लाइक दैट। सर ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर। ओके सर। जब बढ़ाएंगे स्टैक में, जब डेटा घुसाएंगे, वो जो टिफिन बॉक्स है वो स्टैक। टिफिन बॉक्स स्टैक पॉइंटर अंदर क्या है? स्टैक पॉइंटर के अंदर 0001 02 03 ऐसा स्टोर है उस टिफिन बॉक्स का नंबर, मगर बर्तन अलग है, उसके अंदर डेटा स्टोर है, उसके अंदर खाना स्टोर हो रहा है। जैसे सब्जी पहले में 01 में, 02 में तुम्हारा मछली, 03 में तुम्हारा चिकन, 04 में तुम्हारा मटन। इज इट क्लियर? यस सर। सर इससे पुश और पॉप का रिलेशन नहीं पता चला। पुश पॉप एकदम सेम टू सेम रिलेशन है। जब भी कोई डेटा तुम पुश करोगे, स्टैक पॉइंटर जो 01 02 03 04 बोल रहा है, ये सब नंबर है, वो स्टैक पॉइंटर के अंदर रहेगा, उसी के अंदर डेटा जाएगा। मान के चलो पुश 30 किया, पुश 30 किया, तो पुश 30 मतलब उस वो मेमोरी लोकेशंस में चला जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब वो सर मेमोरी पुश लोकेशंस में चला जाएगा पुश करने से। +1 इंक्रीमेंट होते रहेगा। इंक्रीमेंट होता जाएगा डेटा जो है, जो उस मेमोरी लोकेशंस का, जैसे पुश 30 मैंने किया था, तो 38 मेमोरी लोकेशंस में जो डेटा है वो चला जाएगा उधर। यस सर। और पॉप में एक डिक्रीमेंट होते जाएगा, एक डिक्रीमेंट होते जाएगा डेटा। उस पॉप 30 करने से क्या होगा? टॉप ऑफ द स्टैक में जो है वो 38 में आ जाएगा। ऐसा हम कढ़ाई के हिसाब से बोलेंगे तो पुश कढ़ाई, पुश कढ़ाई, पुश कढ़ाई, पुश कढ़ाई। पॉप करेंगे तो पॉप कढ़ाई, पॉप कढ़ाई, पॉप कढ़ाई, पॉप कढ़ाई। इज इट क्लियर? यस सर। यस। सोनम बोलो, if you are not clear I can give any another example. No sir, it is clear. Push and pop is used to destroy the data, to store the data for the future purpose. हमारा प्रोग्रामिंग में दूसरा में आएगा, इसी के लिए हम स्टोर करके रखते हैं। Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay. चलो नेक्स्ट दिन I will be discuss the memory interfacing tomorrow. जो भी आप स्टैक पॉइंटर का फंक्शन बताए वो 8085 और 8051 दोनों के लिए सेम? दोनों के लिए सेम है, मगर एक डिफरेंस है। 8085 के लिए स्टैक पॉइंटर ऑलवेज डिक्रीमेंटल। स्टैक में घुसाओ तो स्टैक डिक्रीमेंट करेगा, स्टैक में घुसाओ तो स्टैक डिक्रीमेंट करेगा। उधर में रजिस्टर पेयर के हिसाब से स्टैक जाते थे, 16 बिट करके एक साथ डेटा जाते थे। पुश के बाद देखना, मैंने बोला था पुश के बाद रजिस्टर पेयर होता है, पुश के बाद रजिस्टर पेयर होगा जैसे, तो दोनों 16 बिट दोनों मेमोरी लोकेशंस में जाएगा। एंड स्टैक पॉइंटर ऑलवेज डिक्रीमेंटेड बाय 2।
मींस एक बार डिक्रीमेंट करेगा, एक डेटा जाएगा, दोबारा डिक्रीमेंट करेगा, दूसरा डेटा जाएगा। मगर 8051 में इंक्रीमेंटल स्टैक, मतलब जब भी स्टैक जाएगा स्टैक इंक्रीमेंट करते करते जाएगा। ओके ओके सर। ओके सर। कोई भी एक जन हमको एड्रेस ये अटेंडेंस मैसेज ये कर देना, 15 है मतलब 13 होगा, हम दो को छोड़ के। ओके सर। Is it clear to you, all of you? Next day I will be discuss, in a different